Hello students, I am GP Notial and I am going to teach class ninth. The topic is what is democracy, why democracy. Okay, we have completed two videos before this topic, rule of law and respect for rights. Before this topic, we have completed the things that what is the real definition of democracy. Now come to the point. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. It means that Zimbabwe got independent in 1980 from the white minority. Since then, the country has been ruled by JNU-PF, the party that led the freedom struggle. Like in India, we got independent in 1947, and before 1947 we fought the fight against the Britishers अंडर द कांग्रेस पार्टी। यानी हमने भी जो है एक कांग्रेस पार्टी के तले जो है हमें से जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है क्या किया, लड़ाई लड़ी एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। सेम 1980 जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंट। After that, what's the important point you have read? You have tried to understand what I would like to explain here. Now listen and now read. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country since independence. यानी उनका जो लीडर है JNU-PF पार्टी का जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, वो 1980 से क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कंट्री को क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। Election have been held regularly and always won by JNU-PF। प्रत्येक बार वहाँ क्या होता है, इलेक्शन होता है, लेकिन हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शन जीतती है। President Mugabe is popular but also use unfair practices in elections. Over the years, his government has changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers are harassed and their meeting uh, disrupted. Public protests and demonstrations against the government are declared illegal. There is a law that limits the rights to criticize the president. Television and radio are controlled by the government and give only the ruling party's versions. There are independent newspaper, but the government harasses those journalists who go against it. The government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges. So, what I would like to convey you, and by reading this paragraph, what you are understanding. According to the definitions, that rulers are always elected by the people, and according to the definition, the election is going according the definitions which is given by the given in the beginning। यानी शुरुआती में जो हमें डेफिनेशन मिली है उसके अनुसार चीजें चल रही है। बट हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इफ we have no other option. Always the ruling party is winning the election continuously, and we have no option, we have no choice। तो हम कैसे माने कि ये एक सही डेफिनेशन है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी वो हमेशा इलेक्शन जीत रही है और अपने इलेक्शन को जीतने के लिए जो है वो सारी जो एक डर्टी ट्रिक्स है, जो एक अनफेयर चीज़ें हैं, उसको क्या कर रही, चला रही है। यानी और जो वहाँ की जो कैबिनेट है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है फेरबदल करके जो है वहाँ की क्या कर रहे हैं, वो जो उनका प्रेसिडेंट है रॉबर्ट मुगाबे, वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है और अपनी जवाबदेही भी कम कर रहा है, और इस प्रकार से क्या करे, जो भी उसके अगेंस्ट हैं उनको क्या कर रहा है, उनको भी हमेशा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। और जो भी चीज़ें जो है उसके खिलाफ जाती है, गवर्नमेंट खिलाफ जाती है, उनको शोषण किया जाता है, उनको जो है पनिश किया जाता है। और जो भी यानी
Government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges. यानी जो भी चीज़ें उनके खिलाफ जाती है वो हमेशा उसको इग्नोर करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि जो है उसको आप जो हैं ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं। तो इलेक्शन कैसे हुआ? लोगों के द्वारा, ठीक है ना। अब जो है हाउ वी कैन से दैट द थिंग्स इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द फेयर डेमोक्रेसी। जो चीज़ें चल रही है एक फेयर डेमोक्रेसी की तरफ चल रहे हैं। whenever we want that फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जबकि हम क्या चाहते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जबकि यहाँ पे क्या चल रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वी हैव नथिंग एनी ऑप्शंस, एंड वी हैव टू चूज एंड वी हैव टू इलेक्ट द सेम थिंग्स। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic, यानी जो रॉबर्ट मुगाबे है वो क्या है? पॉपुलर भी है, लेकिन लेकिन जो है जो रॉबर्ट मुगाबे है वो पॉपुलर भी है, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है अपनी एक्टिविटीज़ के कारण। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, यानी जो पॉपुलर लीडर है वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है। ही कैन बी अ डिक्टेटर, वो डिक्टेटर भी हो सकता है। यू कैन रीड अबाउट किम जोंग, ओके, द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। आप हमेशा जो है नॉर्थ कोरिया के लीडर के बारे में, किम जोंग के बारे में सुनते होंगे, कभी भी आप जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे वो किस प्रकार से डिसीजन लेता है, ठीक है ना, किस प्रकार से वो डिसीजन लेता है, तो आप उसको भी सुनते होंगे। तो यानी कि पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी डिक्टेटर, वो तानाशाह भी हो सकता है, ठीक है ना। If we wish to access a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before election. This requires basic rights of the citizens. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. They should to free to think, to have options, to express these in a public, to form associations, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 6. Okay, the things is not mentioned here. We'll read about the things in chapter 6. तो क्या है कि the people have different types of rights in Indian government. In Indian constitutions we have some fundamental rights: right to equality, right to freedom, right to protest against the government decision, and तो यहाँ पे भी जो है लोगों को जो है ये सब प्रकार के राइट्स होने चाहिए। कौन से? जैसे दे शुड बी फ्री टू थिंक, यानी लोगों को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। टू हैव ऑप्शन, लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, वो अपनी भावनाओं को जो है पब्लिकली जो है क्या कर सकें, बता सकें। टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई संगठन बना सकें, ठीक है ना। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, जो भी पॉलिटिकल एक्शन लिया जाता है यदि वो लोगों के हित में न हो तो उसका विरोध करें, उसको विरोध करने की आज़ादी होनी चाहिए। और जो मीडिया है वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें हो सकती है, तब जाके कहीं जो हम जो है एक डेमोक्रेसी क्या कर सकते हैं, एक जो है संभावना बन सकती है। Similarly, there are some conditions that apply to the way of government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities.
every major decisions has to go through a series of consultations. Every office barrier has certain rights and responsibilities assigned by the constitutions and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officers. We shall read more about this in chapter 5. Both these accepts give us the fourth and final feature of democracy. Okay, according to this, कि ये सब चीज़ें बात जो हम क्या समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्या होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, यानी लोग जो हैं जो चाहें अकॉर्डिंग द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अनुसार क्या है, लोगों के पास पावर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बराबर का राइट्स देता है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो लोग हैं। उस प्रकार से हम किस कंक्लूजन पर जाते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कुछ लिमिट के साथ, यानी रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान ने जो एक संवैधानिक व्यवस्था बना रखी है उसी के अनुसार हमारी सरकार को काम करना चाहिए है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, जिसमें जो है लोगों के जो अधिकार हैं उसको भी लेके जो है सरकार को जो हमेशा जो है अपने आप को जो है अपनी कार्यवाही करनी चाहिए। यानी अच्छी सरकार वही होती है जो लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए जो है आगे बढ़ती है और एक संवैधानिक तरीके से जो क्या करती है सरकार चलाती है। ठीक है ना, उसी को हम एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो समरी ऑफ डेफिनेशन, let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, यानी हमारे जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। But we found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it through a series of examples. We worked off 4 features of democracy as a form of government. अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, यानी डेमोक्रेसी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी का हम दूसरी डेफिनेशन में तय करेंगे, द पावर ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, ठीक है ना, वही जो है एक अच्छी सरकार क्या कर सकती है, चला सकती है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए जो कि सारे डिसीजन ले सके। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल टू चेंज द रूल करंट रूलर्स, यानी प्रत्येक इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि जैसे कहीं 5 साल बाद इलेक्शन, तो कहीं 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और वहाँ पर लोगों के पास भी क्या होनी चाहिए, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो जिनको चाहें उसको चुन सकें। ठीक है ना, और जो चुने हुए हैं यदि वो सही काम नहीं करते उनके हारने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से जो है, यानी कि देन वी कैन से दैट दिस इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड who are not doing their job properly and honestly, they have the proper chance for the losing. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, यानी ये जो चॉइस है प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए और सबके पास इसकी चॉइस क्या होनी चाहिए, एक बराबर का क्या है, अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो है यानी 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये इस चीज़ को क्या करता है, फॉलो करता है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स, यानी the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक रूल्स हैं उसके अनुसार सरकार चलनी चाहिए, एंड सिटीजन्स राइट, और सरकार की जो यानी लोगों की जो एक राइट्स हैं उसके अनुसार जो क्या होना चाहिए, जो लोगों की जो राइट्स हैं उसको मद्देनजर सरकार को क्या करना चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए, तभी जाके हम अच्छी गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं। नाउ अनदर टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी।
The topic we will start in the next video. Okay. Now I would like to give assignment to related this topic. Dear students, you have read all the important notes, okay, which is relevant to the democracy. Okay, thank you and have a nice day.